میرے پیارے وطن تو سلامت رہے، باغبان چمن تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، باغبان چمن تو سلامت رہے۔ میرے اجداد کی محنتوں کا نشان، میرے اسلاف کی عظمتوں کا بیان، میرے اجداد کی محنتوں کا نشان، میرے اسلاف کی عظمتوں کا بیان، یادگار زمن تو سلامت رہے، باغبان چمن تو سلامت رہے۔ ماشاء اللہ، زادک اللہ علما وعملا۔ اب ان کے بعد اردو زبان میں ترانہ پیش کرنے کے لیے میں جویریہ بنت فیض اللہ کو اور ان کی ٹیم کو آواز دیتا ہوں کہ آپ آئیں اور ترانہ پیش کریں۔ بچیوں کو ذرا لگانے دے دینا۔ یہ آپ لوگ لگا لو، سامنے آ تو پھر ہاتھ میں رکھ لو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آزادی کا دن آیا، ہم جشن منائیں گے، اپنا یہ ترنگا ہم گھر گھر لہرائیں گے۔ آزادی کا دن آیا، ہم جشن منائیں گے، اپنا یہ ترنگا ہم گھر گھر لہرائیں گے۔ آزادی ہماری ہے پرکوں کی بدولت، خوشحالی ہماری ہے پرکوں کی بدولت۔ آزادی ہماری ہے پرکوں کی بدولت، خوشحالی ہماری ہے پرکوں کی بدولت۔ آزادی کا دن آیا، ہم جشن منائیں گے، اپنا ترنگا ہم گھر گھر لہرائیں گے۔ انگریزوں نے بھارت پر وہ ظلم کیا واللہ، حیران تھی فلک دھرتی، حیران تھی یہ دنیا۔ انگریزوں نے بھارت پر وہ ظلم کیا واللہ، حیران تھی فلک دھرتی، حیران تھی یہ دنیا۔ کس طرح گئی جانے ہم بھول نہ پائیں گے، بلیدان کی یہ باتیں لوگوں کو بتائیں گے۔ آزادی کا دن آیا، ہم جشن منائیں گے، اپنا یہ ترنگا ہم گھر گھر لہرائیں گے۔ یکتائی بھارت کی پہچان زمانے میں، کچھ لوگ یہاں ظالم ہے اس کو مٹانے میں۔ یکتائی بھارت کی پہچان زمانے میں، کچھ لوگ یہاں ظالم ہے اس کو مٹانے میں۔ یکتائی سے بھارت کو مضبوط بتائیں گے، بھارت کی وفاؤں پر جا اپنی لٹائیں گے۔ آزادی کا دن آیا، ہم جشن منائیں گے، اپنا ترنگا ہم گھر گھر لہرائیں گے۔ سرسبز رہے شاکر بھارت کا سی گلشن، ناکام رہے عرب اس ملک کا ہر دشمن۔ سرسبز رہے شاکر بھارت کا سی گلشن، ناکام رہے عرب اس ملک کا ہر دشمن۔ ہر شعبے میں بھارت کا ہم نام بڑھائیں گے، کیسی بھی رکاوٹ ہو کچھ خوف نہ کھائیں گے۔ آزادی کا دن آیا، ہم جشن منائیں گے، اپنا یہ ترنگا ہم گھر گھر لہرائیں گے۔ آزادی کا دن آیا، ہم جشن منائیں گے، اپنا یہ ترنگا ہم گھر گھر لہرائیں گے۔ السلام علیکم۔
माशाअल्लाह। अब इनके बाद कन्नड़ा ज़बान में तराना पेश करने के लिए मैं मख्फिया और उनकी टीम को दावत देता हूं कि आप आएँ और तराना पेश करें। जोड़ी से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ನನ್ನ ದೇಶ ನನ್ನ ಉಸಿರು ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಭಾರತ, ನನ್ನ ದೇಶ ನನ್ನ ಉಸಿರು ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಭಾರತ. ಶಾಂತಿ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಾರುತ್ತ, ಇಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಜನ್ಮ ತಾಳಲು, ಇಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಜನ್ಮ ತಾಳಲು. ಪುಣ್ಯವು ಧನ್ಯವು ಭಾರತ 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 ಎನ್ನಲು ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ. ನನ್ನ ದೇಶ ನನ್ನ ಉಸಿರು ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಭಾರತ, ಶಾಂತಿ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಾರುತ್ತ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर हमारा तकरीरी सिलसिला और तरानों का सिलसिला ख़त्म होता है। अब इनके बाद मैं बड़े ही अदब एहतराम के साथ मुदीर मदरसा फज़ीलतुश शेख फैज़ुल्लाह अल-मदनी हफ़िज़हुल्लाह को बड़े ही अदब के साथ दावत देता हूँ कि आप आएँ और इस यौम आज़ादी के मौके पर अपनी कीमती कलिमात से हम सामईन को मुस्तफ़ीद फरमाएँ। إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معزز اساتذہ کرام، عزیز طلباء و طالبات، آج 15 اگست کی صبح سن 2026 ہفتے کے دن ہم سب یہاں اکٹھا ہوئے ہیں ایک ایسی تقریب میں جسے آزادی کا جشن کہا جاتا ہے۔ آزادی یہ ایک ایسا نعرہ ہے اور ایک ایسا مطالبہ ہے جس کے لیے انسان
अपना सब कुछ भुलाकर सब के साथ मिलकर आजादी के इस हक को हासिल करना चाहता है और करना भी चाहिए। रुस्तुम के दरबार में रबीई इब्न आमिर से जब ये सवाल किया गया कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो, तो उन्होंने जवाब में कहा था, जिअना लिनुखरिजल इबाद मिन इबादतिल इबाद इला इबादति रब्बिल इबाद। हम आए हैं ताकि लोगों की गुलामी से आजाद करके अल्लाह का गुलाम बनाए। असल आजादी अल्लाह की गुलामी है। असल आजादी अल्लाह की गुलामी है और वो सबसे बड़ी आजादी है। इस्लाम में आजादी की अहमियत बहुत ज्यादा है। इतनी ज्यादा है कि घर में पलने वाली एक बच्ची जब उसका निकाह किया जाना है तो इस्लाम ने तालीम दी कि उसका निकाह करने से पहले उससे उसकी इजाजत ली जाएगी। ये आजादी है। लेकिन आजादी का वो तसव्वुर इस्लाम पेश नहीं करता जो बहुत सारे भूले भटके लोग, गुमराह लोग आजादी का तसव्वुर पेश करते हैं। आजादी का तसव्वुर हर एक के लिए अलग होता है। एक बच्चा है छोटा सा, सामने एक तालाब है, उधर वो दौड़ते जा रहा है, लोग बैठकर देख रहे हैं। अगर उस बच्चे को नहीं रोक रहे हैं, ये सोचकर के बच्चे की आजादी है, उसे जहां चाहे वहां जाना चाहिए, तो सबके सब क्या होंगे? मुजरिम होंगे, क्योंकि वो बच्चा भाग कर जाएगा, तालाब में गिर जाएगा, मर जाएगा। उसकी आजादी का ये मतलब हरगिज नहीं है कि उसे वो सब कुछ करने के लिए छोड़ दिया जाए जो उसका दिल चाहता है। अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए भी उनकी भलाई के खातिर आजादी के दायरे को महदूद किया है। एक बीवी की हकीकी आजादी ये है कि वो भलाई के कामों में शौहर की मुकर्रर करदा हदों में रहकर आजादी बनाए। बच्चों की आजादी ये है कि वालिदैन के इताअत गुजार और फरमाबरदार होकर आजादी मनाएं। एक मुसलमान की आजादी ये है कि वो अपनी आजादाना जिंदगी अल्लाह की मुकर्रर करदा हदों में रहते हुए गुजारे। जानवरों के लिए भी मुतलक आजादी का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। जो भेड़ बकरियां चराई जाती हैं, अगर चरवाहा उनको उनकी मर्जी के मुताबिक आजाद छोड़ देगा तो क्या होगा? भेड़िए का शिकार हो जाएंगी। उनकी आजादी इसमें है कि उनकी निगरानी की जाए, उनको चराने वाला चरने की इजाजत अपनी मुकर्रर करदा हदों में रहते हुए दे। यहां तक कि एक बेजान चीज पतंग जब हम उड़ाते हैं, पतंग को उड़ने के लिए आजाद छोड़ने के साथ साथ उड़ाने वाले के हाथ में पतंग की डोर का होना जरूरी है। अगर डोर छोड़ दिया, जरूर पतंग 2-4 मीटर और उड़ सकती है, हवा है तो,
लेकिन फौरन नीचे गिर जाएगी। जानवर हों, इंसान हों, यहां तक के जमादात हों, सब की आजादी की हदें मुकर्रर हैं। इस्लाम आजादी की हिमायत जरूर करता है, लेकिन साथ ही साथ उसके लिए हदें मुकर्रर करता है। आजादी का वो तसव्वुर कि हमारा जिस्म हम जैसे चाहे कपड़े पहने, हमारा ज़हन हम जैसी चाहे सोच बनाएं, हमारी जिंदगी हम जिस तरीके से चाहे जिए, इस तरीके की आजादी की इस्लाम के अंदर कोई मदह और तारीफ नहीं की गई है। यह आजादी मज़मूम है और हर आदमी इस चीज को मानता है कि आजादी मुकर्ररा हदों में होनी चाहिए और कोई भी इंसान अपनी जायज आजादी को हासिल करने के लिए इस हद तक आगे बढ़ सकता है और बढ़ना भी चाहिए कि उसके लिए इंसान अपनी जान तक कुर्बान कर देता है, और इस्लाम इससे मना नहीं करता। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़ाई झगड़े से मना किया, लेकिन फरमाया अगर कोई तुम्हारा माल तुमसे छीनना चाहता है तो तुम उससे लड़ो, लड़ो उससे। अगर लड़ते लड़ते तुम्हारी जान चली जाए तो तुम शहादत के दर्जे को पहुंच जाओगे। अगर कोई तुम्हारी इज्जत पर हमला करता है, लड़ो उससे। तो माल के लिए लड़ना, इज्जत के लिए लड़ना, इस्लाम इसकी इजाजत देता है। क्यों? क्योंकि ये आपकी आजादी पर डाका है। और आज 15 अगस्त हम खुसूसियत के साथ एक आजादी मनाते हैं। वो कौन सी आजादी है? मुल्क अजीज हिंदुस्तान में एक जमाने तक ऐसे लोग जो तिजारत के मकसद से आकर, मौका देखकर, लोगों में फूट डालकर, मुल्क पर कब्जा करके लोगों को अपनी मर्जी के मुताबिक गुलामों की तरह रखकर अपने मुल्क और अपने फायदे हासिल करने के लिए हिंदुस्तान की आवाम को बिला तफरीक मजहब, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदुस्तान के सारे लोगों को गुलाम बनाकर उनसे तरह तरह के काम ले रहे थे और फायदे उठा रहे थे। तो उस वक्त आजादी की जंगें शुरू हुई, सब ने इन जंगों में हिस्सा लिया। किसी ने जोर जबरदस्ती से भगाने की कोशिश की, किसी ने खामोश रहकर एहतजाजात किए। कई लोगों को कई तरीके की परेशानियां झेलनी पड़ी। उनमें नुमाया नाम सब जानते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें फांसियां दी गईं, कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें ऐसी जेलों में छोड़ा गया, बंद करके रखा गया जहां से निकलने का तसव्वुर नहीं किया जाता था। और ऐसा सब अंग्रेज इसलिए कर रहे थे ताकि आजादी का जो एहतजाज है, आजादी की जो जंग है, उसे दबाया जा सके। लेकिन कई सालों की मेहनत और कोशिश के बाद अल्लाह की मदद से अंग्रेज को हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा। वो छोड़ने पर मजबूर हो गया और 15 अगस्त की सुबह हिंदुस्तानियों को उनका मुल्क हिंदुस्तान आजाद होकर मिल गया। उसके बाद
हिंदुस्तान का कानून बनाया गया, कानून नाफिज किया गया। अब इस मुल्क पर कोई दूसरे मुल्क वाला नहीं, हिंदुस्तान के बाशिंदे हुक्मरानी करते हैं। इलेक्शन के जरिए हमारे रहनुमा चुने जाते हैं। हम सब की जिम्मेदारी ये है कि हम लोग इस मुल्क को बनाने के वास्ते सबसे पहले मुल्क क्या है, मुल्क के मफादात क्या हैं, मुल्क को किन रास्तों पर ले जाना चाहिए, तालीम कितनी अहम है, तालीम से कितनी तरक्की आती है। जब हम बड़े हो जाएंगे, वोट देने की बारी आए, हमें सोचना है कि कौन सा ऐसा शख्स है जिसे वोट देकर जिताया जा सकता है। अगर वोट दें फिर भी वो हार रहा है, वोट जाए होगा। वोट किसे देकर जिताया जा सकता है? जीतने के बाद वो मुल्क की भलाई के लिए, पूरी अवाम की भलाई के लिए क्या काम कर सकता है, खुद के लिए जीने वाला है या मुल्क के लिए जीने वाला है, ये सारी चीजों को देखकर हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम अच्छे रहनुमाओं को चुने और मुल्क की तरक्की के लिए हमसे जो कुछ हो सकता है, वो बड़े बड़े काम जो हम कर सकते हैं हमारी ताकत के मुताबिक, 2-3 मिनटों में वो काम मैं बताकर अपनी बात खत्म करता हूं। हम लोग इस मुल्क में रहने वाले हैं। इस मुल्क की तरक्की के लिए हमसे जो काम हो सकते हैं वो क्या है? जहां हम रहते हैं वहां की जगह को साफ सुथरा रखना, ये मुल्क को तरक्की देना है। जहां हम रहते हैं हमारी ताकत के मुताबिक हम लोग कुछ दरख्त लगा दें, इससे सबको अच्छी हवा मिले, ये हमारे करने के काम है। हम जहां पर रहते हैं वहां पर 4 अल्फाज पढ़ें ताकि हमको कोई बेवकूफ ना बनाए, ताकि हमारे फायदे हमको पहुंचने के बजाय हमारे हाथ में किसी भी तरीके की गुमराही की चीज देकर हमारी आवाज को ना दबाए। इसलिए हमको तालीम याफ्ता होना है, पढ़ना है, और जो कुछ भी हम पढ़ते हैं ये सही तालीम औरों तक पहुंचाने की कोशिश करना है। मुल्क की सलामती के लिए और मुल्क में रहने वाले सारे लोगों की अमन और सलामती के लिए अल्लाह से दुआएं करना है। हम अपनी तरफ से कभी कोई ऐसा काम हरगिज ना करें जिस काम से हमारे समाज में, हमारी बस्ती में, हम जहां रहते हैं उस जगह पर किसी भी तरीके की ना इत्तेफाकी, दंगा फसाद जैसी जो है नौबत आए। तो हम तमाम को चाहिए कि हम लोग इल्म वाले बने, कानून पढ़ें, हिंदुस्तान का जो दस्तूर है उस दस्तूर को पढ़ें, दस्तूर के मुताबिक अपने हुकूक हासिल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं उसके लिए हम कोशिश करें, शोर शराबे से दूर रहें। और याद रखें, आज जहां पर नफरतें फैलाई जा रही हैं, आज जहां पर सियासत का बाजार गर्म करके लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है और अवाम के हुकूक दबाए जा रहे हैं, ऐसे वक्त में इल्म से बड़ा हथियार कोई नहीं है। इल्म हासिल करके तालीम के जोर पर हमारे मारे जाने वाले हुकूक हम वापस ले सकते हैं। सबसे पहले हम इस बात को जाने, हम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह की बंदगी करते हुए जिंदगी गुजारना है। ईमान के साथ, इस्लाम के साथ इस मुल्क में अगर हम जीना चाहते हैं तो ये हमारा पैदाइशी हक भी है और कानून के एतबार से हमको दिया गया हक है। अगर हम मुसलमान बनकर यहाँ पर जी रहे हैं तो ये किसी के एहसान से नहीं है, ये हमारा हक है। इस हक के साथ जीने की हमको हमारा कानून भी इजाजत देता है और हमारा रब भी इजाजत देता है। आजादी के सही तस्वुर को हमें पढ़ना है
आज़ादी के सही तसव्वुर के साथ जीने के लिए हमको मेहनत करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी, अपने आप को बनाना पड़ेगा, अपने आप को संवारना पड़ेगा, इल्म वाला बनाना पड़ेगा। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इस मुल्क की हिफाजत फरमाए, इस मुल्क के दुश्मनों से, चाहे वो इसी मुल्क के रहने वाले हों या बाहर के रहने वाले हों, अल्लाह हर किस्म के दुश्मनों से इस मुल्क की हिफाजत फरमाए। खुद के लिए जीकर मुल्क को बर्बाद करने वाले गद्दारों को अल्लाह तबारक व तआला उनके अंजाम तक पहुंचाए। अल्लाह ताला हकदारों को उनका हक समझकर सही तरीके से हक का मुतालबा करने की अल्लाह सबको तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला मुल्क भर के तमाम तुल्लाब इल्म को इल्म की रोशनी से माला माल फरमाए, इल्म की तरक्की में सबको आगे बढ़ने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला मुल्क के अंदर होने वाले फसादात फितनों से मुल्क की हिफाजत करे। आमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का हमारा ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम को पहुंचता है। लिहाजा आप तमाम अपने असातिज़ा के जाने के बाद ही अपनी जगह से उठेंगे और दुआ पढ़ते हुए जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।